Hello students, myself VN Singh from Solar Technology. We are discussing on the solved questions of NEET 2019 which is required for providing a guideline or a guidance for the candidates appearing in NEET 2020 this year, which is coming very shortly. So this will be very beneficial till date, till time. We have already solved out and have discussed from question number 1 to question number 35 of physics paper NEET examination 2019. Now we are starting from the question number 36 to question number 45. Okay, now we start. Okay, you see question number 36. Two parallel infinite lines charges with linear charge density plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? What is they are telling? They are telling that the two plates are there. One is positively charged, another one is negatively charged. One is the plus lambda and another one is the minus lambda. What is lambda? Lambda is the charge per unit length, because this one is the linear charge densities. Okay, so 4 options are given. One is 0, second is 2 lambda by pi epsilon 0 r, okay, Newton Coulomb, and lambda by pi epsilon 0 r Newton Coulomb, and fourth is lambda by 2 pi epsilon 0 r Newton Coulombs. Then you just see actually what's happening. So here electric field due to the line charge 1, what is there? E1 is equal to lambda by 2 pi epsilon 0 r, and this one is in direction of x, so this one is the unit vector I. Okay, here you see electric field ड्यू टू द लाइन चार्ज 2, दूसरे के चलते जो हो रहा है, लाइन 2 के चलते जो अगर हो रहा है उसके चलते क्या आ रहा है? व्हाट इज दे आर कमिंग? लैम्डा बाई फिर आएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 r यूनिट वेक्टर I न्यूटन कूलम. सो ई नेट, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगा? दैट विल बी E1 प्लस E2. देखिए या यू सी हेयर व्हाट इज हैपनिंग. एक्चुअली ड्यू टू प्लस के चलते सेंटर मिड पॉइंट में व्हाट इज दे आर आस्किंग? दे आर आस्किंग फॉर what is the electric field midway between the two line charges. Midway means in between the two. So what's happening? What is there? So here is the midway, there is the middle point between the two plates. Okay, so what's happening? We have already discussed that from that when charge is plus q or minus q, या plus lambda or minus lambda, mean plus positive charges are there, that will create electric field away from the charge. So here two charges are acting on this point, one is from the plus, another is from the negative. तो from plus charge what is there? पॉजिटिव्स के चलते जो चार्ज आ रहा है, कहाँ फोर्स लग रहा है? अवे फ्रॉम. तो इस पॉइंट पर अवे मानी इन द इस डायरेक्शन में, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेट. सो दिस वन इज अवे, दिस साइड में आ रहा है. कहाँ आ रहा है? इन द इवन डायरेक्शन में आ रहा है. और दूसरा कहाँ आ रहा है? E2 कहाँ जा रहा है? ड्यू टू दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द टू टेंडिंग टूवार्ड्स द चार्ज. माइनस में क्या हो रहा है? हम लोग क्या पढ़े हैं माइनस में? जब ये माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज इज देयर, दैट इज टेंडिंग फील्ड जो बनता है दैट इज टूवार्ड्स द चार्ज. सो बोथ चार्ज याद है. ओके, तो E1 एंड प्लस E2 दोनों यहाँ हो जाएगा. सो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बराबर एप्सिलॉन टू लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r I प्लस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, दोनों जुड़ जाएगा. इसे जुट के हाफ ऑफ खत्म हो गया, आ गया टोटल आ गया. इसे लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन 0 r, दैट इज INC माने न्यूटन पर कूलम. सो आंसर कितना हो गया? आंसर हमारा देखिए आंसर कितना है? लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन 0 r. This one is the correct answer. Answer is 3. Okay, this one is correct. Clear है?
चलिए देखिए अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। एक दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस आर है, एंड दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों चार्ज के बीच में जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, दैट इज एफ। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए नर्वस नहीं होना है सवाल देखने के बाद। कहता है 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, देन फोर्सेस बिटवीन द चार्जेज कितना होगा। चार ऑप्शन दिया हो, एफ है 9f/16 है, 16a/9 है, 4a/3 है। देखिए क्या हो रहा है, क्यू पर है चार्जेज, तो फोर्स बराबर क्या होगा, KQ² होता है, जानते हैं। क्यू बराबर के बराबर क्या हो रहा है, के बराबर कितना होता है 1/4πε0 होता है, जानते हैं। क्लियर है, तो KQ² हो गया। क्यू क्या हुआ, दोनों का क्यू और क्यू का दोनों मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो क्या आ रहा है दोनों का, कहता है 25% चार्ज ऑफ ए अगर हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस पर तो ये कितना 25% घट जाएगा, माने 3/4 बचेगा, 1/4 घट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, QF कितना आ जाएगा, Q - Q/4 बराबर 3/4 कितना आ रहा है 3/4 Q आ गया। और Q गेन करेगा तो -Q है और प्लस Q/4 आ रहा है इस पर, तो कितना आएगा -4Q ले लीजिए, LCM 4 आ गया, एंड 4 से गुना कीजिए, -4Q + Q आ गया बराबर -3Q आ गया बटा 4, ठीक है। क्लियर है। सो F1 बराबर कितना हो गया, के क्यू ए क्यू के बीच में जो आ गया एक QB बटा R²। अब क्या कहता है यहाँ पर देखिए पढ़ रहा है बिटवीन देम, ठीक है। तो दोनों फोर्स क्या है हमारा बराबर QA बराबर K 3Q डिवाइडेड बाई 4 माइनस है तो होल स्क्वायर आ गया हमारा इक्वल टू बटा R²। ये प्लस माइनस खत्म हो गया तो कितना आएगा 3 3 9 4 4 16, ठीक है। इसको होल स्क्वायर कर दिए हैं, कितना आ गया 9/16 आ गया KQ² चूँकि KQ² बटा बराबर क्या होता है फोर्स होता है F होता है, इसलिए हम क्या लिख लेंगे F1 बराबर 9/16 KQ² इज F, इसलिए उसको F इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आंसर इज 9F/16, आंसर इज 2, दिस वन इज द करेक्ट। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्या 38 कह रहा है, देखिए यहाँ पर A small hole of area of cross section 2 mm² is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 m, ठीक है। Take G = 10 m per second square, the rate of flow of water through the open hole would be nearly, कितना वाटर फ्लो करेगा। चार ऑप्शन दिए हैं, 12.6 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, 8.9 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, 2.23 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड 6.4 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब देखिए कितना आ रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो देखिए एक यही फिगर एक बना रहे हैं, एक टैंक है, इसके हाइट 2 mm है, यहाँ पर पेंदी के पास में एडजेसेंट टू कहीं पर एक होल है, ठीक है। ये होल का डाया कितना है 2 है, कहीं पर है एडजेसेंट में, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो लिक्विड कितना आ रहा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, उसका होल का एरिया है 2 मिलीमीटर/स्क्वायर, 2 मिलीमीटर² है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो Q बराबर कितना होगा, उसका स्पीड और गुना हो जाएगा एरिया से, बराबर है √2GH आ जाएगा। क्लियर है, बराबर कितना होगा 2 × 10⁻, कहाँ से आ गया ये 2 मिलीमीटर² जो कन्वर्सन करेंगे मीटर में और उसको होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 × 10⁻³ और उसको स्क्वायर करिएगा 10⁻⁶ मीटर² आ गया, ठीक है। × √2GH है, 2 G 10 है, H कितना है 2 मीटर है। ओके, ये बराबर कितना आ गया घट के 12.56 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। दिस इज द आंसर, कितना आ गया 12.56 10⁻⁶, देखिए ऑप्शन में कितना आ रहा है 12.6 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो 1 इज द आंसर। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, एक सर्किट है, देखिए सर्किट बनाया हुआ है, एक ई ओपन है, ई भी ओपन है, ठीक है। ये नैंड नॉर और जो गेट आता है नैंड गेट है या एंड और सर्किट है, लॉजिक गेट्स है। देखिए
ए पर क्या है, यहाँ ओपन है, ए भी ओपन है, ठीक है। ओपन में 0 होगा, अब क्लोज में 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ से 6 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट दिया गया, एक रेजिस्टेंस है, एक LED लैंप जलता है, फिर एक रेजिस्टेंस जगह इसको हम ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। ओके है, क्लियर है। क्या रहा है इसमें, देखिए कहता है कि द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज एंड और नैंड नॉर। क्या रहा है, एंड और क्या आएगा, सोल्यूशन क्या है, फ्रॉम द गिवन सर्किट LED विल ग्लो। कब कब होगा, देखिए LED कब ग्लो, यहाँ से अब इसको ग्लो, यहाँ से अब इसको क्लोज कर देंगे, तो क्लोज करने से क्या होगा, LED देखिए क्या होगा, ये दोनों जब ओपन है, पहले ही ओपन है, पहला ओपन है, दूसरा ओपन है, जब दोनों ओपन है, A और B दोनों ओपन है, तो क्या होगा, जब खुला हुआ रहेगा तो यहाँ से B से C आ रहेगा, यहाँ लैंप मिलेगा, ये ग्राउंड हो रहा है, सो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, LED विल ग्लो, इसलिए Y इक्वल टू 1। जब दोनों है तो एक 0 है, एक खुला हुआ, एक 1 है। मान लिया कि A ओपन है, I क्लोज्ड है, उस हालत में क्लोज हो गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सर्किट यहीं आ रहा है, ये क्लोज इधर नहीं जा रहा है कहीं पर ही, माने ये जो दिया गया है एक्चुअली शॉर्ट किया हुआ है, देखिए यहाँ से आँख खोल के देखिए, यहाँ से यहाँ शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद फिर भी कोई सर्किट इसका कोई उपयोगिता नहीं है, तो अगर ये 0 है, ये 1 है, इन दैट वेरी केस लैम्प विल ग्लो, ठीक है। या E क्लोज्ड है, E ओपन है, दिस वन A इज क्लोज्ड, B इज ओपन, तो इस हालत में क्या होगा, इस हालत में भी क्या होगा, A क्लोज है, B ओपन है, उस हालत में भी क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इधर से शॉर्टिंग नहीं हो रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा है, सो दिस लैम्प विल ग्लो, ठीक है। ओके है। अगर दोनों क्लोज है तब क्या हो, दोनों क्लोज का मतलब क्या, सर्किट यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट हो रहा है, ये लैंप जो है इंटायरली शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में, तो क्या होगा, लैंप ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, जब शॉर्ट हो गया तो लैंप ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहा है, दोनों इक्वल पोटेंशियल पर आ गया, ये 6 वोल्ट का कोई उपयोगिता नहीं रह गया इसमें, ठीक है, तो लैंप विल नॉट ग्लो। क्लियर है, ठीक है। इसलिए कौन सा चार्ट, ये क्या आ रहा है, चार्ट जो दिखा रहा है किसका दिखा रहा है, नैंड सर्किट का दिखा रहा है, नैंड लॉजिक गेट है, सो आंसर इज नैंड लॉजिक गेट, इसलिए आंसर इज 3। ओके, देखिए सही है, क्लियर है, डाउट नहीं ना है कुछ इसमें। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय द सिस्टम। वह कौन ऐसा सिस्टम है, कौन सिस्टम है थर्मल का जिसमें कि ना तो रिलीज होता है और ना एब्जॉर्ब होता है सिस्टम में, कौन क्या चीज़ नहीं एब्जॉर्ब, हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज बाय सिस्टम। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में कॉन्स्टेंट रहेगा, डियाबेटिक में कुछ नहीं चेंज नहीं करेगा कुछ, डियाबेटिक में क्या होगा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, एडियाबेटिक हो गया हमारा, ठीक है। ओके है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये सब कितना आसान, बहुत आसान सब क्वेश्चन है। 41 देखिए क्वेश्चन, ए 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁵ t टन when the plane of coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be 2 volt, 2 volt, 0.2 volt, 2 × 10⁻³ volt and 0.02 volt. What will be आंसर, देखिए क्या कह रहा है, कहता क्या है कि इनिशियल एंगल थीटा हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी बराबर दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁵t। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल n कितना आ रहा है 800, एरिया ऑफ कॉइल ए बराबर 0.05, देखिए यहीं से सब लिया गया है, 0.1 एंड, ठीक है। तो टाइम टेकन टू रोटेट 0.1 सेकेंड, यहाँ देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी 0.1 सेकेंड है, ठीक है। तो इनिशियल एंगल θ1 कितना हो रहा है हमारा, θ1 बराबर 0, ठीक है। फाइनल एंगल कितना θ2 90 डिग्री हो जाएगा, हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ∇φ बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 90 है तो, इसलिए कि cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ∇φ बराबर कितना रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। इसलिए NBA cos 90 डिग्री माइनस BA कितना होगा, cos 0 डिग्री, इसलिए देखिए बराबर माइनस NBA बराबर -800 × 5 × 10⁻⁵ × 0.05 बराबर -2 × 10⁻³ वेबर आ गया, ठीक है। इसलिए E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू -∇φ/dt बराबर -2 × 10⁻³ 0.1, इसलिए आंसर कितना रहा 0.02 वोल्ट। ओके, सो आंसर इज
4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है ना। चलिए ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या कहता है। द रेडियस ऑफ सर्किल, द रेडियस ऑफ सर्किल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशंस आर इंडिकेटेड इन द फिगर। चलिए इसमें सब दिखाया हुआ है, देखिए क्या क्या है इसमें। एक्स है, इधर बाई एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है, एक रिवोल्यूशंस घूम रहा है इसमें। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 3 है मीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ 3 मीटर है, ठीक है। एंड पॉइंट पी है एक, यहाँ पॉइंट पी है, दैट इज टी एट 0 पर। तो एज टी इजकल टू कितना दिया, 4 सेकेंड लिखा हुआ। टाइम जो है वाई बराबर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल पी इज कितना है, और ऑप्शन दिया, 4 को ऑप्शन मांगा गया है। वाई टी बराबर -3 cos 2 pi t वेयर वाई इज इन मीटर, वाई टी बराबर 4 sin pi t बाई 2 वेयर वाई इज इन मीटर, और 3 में क्या है, वाई टी 3 cos कितना है, 3 pi t बाई 2 वेयर वाई इज इन मीटर, एंड वाई टी बराबर 3 cos pi t बाई 2 वेयर वाई इज मीटर। चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग कैसे आ रहा है, क्या है। देखिए इसको दोबारा फिर यहाँ ड्रॉ किए हैं, क्या रहा है, एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 क्या है, वाई डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वाई डिस्प्लेसमेंट जो है टी बराबर 0 पर, यहाँ देखिए ना टी बराबर 0 दिया हुआ है ना, मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सो इक्वेशन विल बी कोसाइन फंक्शन होगा, ठीक है। तो कितना रहा है वो, टी बराबर 4s, ओमेगा बराबर कितना होगा, 2 पाई बाई टी, एंगुलर जो वेलोसिटी है क्या आएगा, 2 पाई बाई टी, इसलिए 2 पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया, 2 यहाँ से कट गया, 2 पाई बाई 2 रेडियन आ गया। बाई बराबर 1 cos ओमेगा टी होगा, इसलिए बाई बराबर ए बराबर कितना है, 3 है, तो 3 cos पाई बाई 2 टी। ओके, आंसर इज 4। देखिए आंसर इज 4, बाई बराबर 3 cos पाई टी बाई 2 आ रहा है ना, पाई बाई 2 टी। ओके, देखिए सो आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर है। आइए 43 देखते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज विंग चार्ज्ड बाई ए वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग एट ए रेट ऑफ 3 volt per second. The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the plates of the capacitor would be respectively क्या होगा, एक में 0 60 माइक्रो एम्स, 60 माइक्रो एम्स, 60 माइक्रो एम्स, 60 माइक्रो एम्स, 0 एंड 0 0 क्या होगा सही। देखिए कैसे बनेगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या, सी बराबर 20 माइक्रोफैराड दिया हुआ है ऑलरेडी, देख लीजिए, बराबर 20 × 10⁻⁶ फैराड। रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ द पोटेंशियल डी वी बाई डी टी, ठीक है, बराबर 3 वोल्ट पर सेकेंड आ गया। क्यू बराबर सी भी, इसलिए इसको डी कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी क्यू बाई डी टी बराबर सी डी वी बाई डी टी आ गया, इसलिए आई सी डी वी बाई डी टी आ रहा है, ऑलरेडी आपका वैल्यू सब आया हुआ है, इसलिए आई सी बराबर 20 × 10⁻⁶ × 3 आ गया, 3 गुना कीजिए इससे, डी वी से सी आ गया प्लस, चलिए देख रहे हैं, इसलिए बराबर कितना आ गया, 60 × 10⁻⁶ एम्पियर आ गया, इस बराबर 60 माइक्रो आ गया, 10⁻�60 माइक्रो एम्पियर आ गया। वी नो दैट आई डी बराबर आई सी बराबर 60 कितना आ रहा है माइक्रो एम्पियर, इसलिए आंसर इज 2। ओके, आंसर इज 2, 60 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, 60 माइक्रो 60 माइक्रो एम्पियर दोनों आ रहा है, तो आई डी बराबर आई सी दोनों आ गया हमारा। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44, in an experiment the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities a, b, c and d are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement x, where x is a square v half divided by c 1/3 and d q will be कितना होगा, ये 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, 3/13%, 16%, -10% एंड 10%, ठीक है। ये मेरा एरर से मेजरमेंट का एक क्वेश्चन फिर पूछा गया है। गिवन एक्स बराबर ए स्क्वायर बी हाफ एंड सी हाफ डी क्यू, ठीक है, तो परसेंटेज एरर कितना होगा, डेल्टा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100 बराबर कितना होगा, 2 × डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, आई इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा ई बाई बी प्लस इंटू 100 प्लस डेल्टा यहाँ कितना हो गया
डेल्टा सी बाई बी सी इंटू 100 बराबर +3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, तो बराबर कितना होगा 2 इंटू 1%, ठीक है, बराबर हाफ, ठीक है, 2% प्लस 1 तो बाई थर्ड 3% प्लस 3 इंटू 4% बराबर 2% प्लस 1% प्लस 1% कितना होगा 2 1 3 1 4 4% और प्लस 12 16%, 16%। तो ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, एरर्स इन मेजरमेंट का क्वेश्चन है। इस बार ही एरर्स इन मेजरमेंट का क्वेश्चन पूछना है, इसलिए मस्ट बी रेडी, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन 45, ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r is carrying a constant current. The plot of the magnitude of the magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by the figure। 4 को ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें विच वन इज करेक्ट मिलाना है। कहता है सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर कैरिंग कांस्टेंट करंट है। द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस, देखिए कैसे है, यहाँ ये फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या, फिगर देखिए कैसा है, इसमें सेंट्रली लाइन है, यहाँ से डी दूरी पर एक आपका एक सिलेंडर बना हुआ है, कर्व है। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर रेडियस आर कैरिंग है कांस्टेंट करंट, प्लॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें से हमको निकालना है कौन है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड कंडक्टर, इन साइड डी इज, अगर डी इज लेस देन आर है, डी जो है स्मॉल डी अगर आर से बहुत छोटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड कंडक्टर कितना होगा, बी इक्वल टू म्यू 0/2 पाई 1/r² डी, इसलिए बी बराबर कितना होगा के डी। इसलिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एट सरफेस डी इक्वल टू आर, जब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन क्या है, ऑरिजिन से पास करते हुए यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, डी इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। अब बी इक्वल टू म्यू 0I डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, यहाँ I/r² है 2 पाई आर, इसलिए मेजरमेंट एट सरफेस हो गया, इसलिए आउट साइड डी इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। इसलिए बी बराबर म्यू 0I डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, इसलिए बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/d के, दैट इज हाइपरबोलिक, ठीक है। इसलिए हाइपरबोलिक आ जाएगा इसका, ये जो देख रहे हैं यहाँ से ये बी हाइपरबोलिक आ रहा है, इस बी इज डायरेक्टली बी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का है, ठीक है। इसलिए आंसर इज 3, ओके, ठीक है। जनरली ग्राफ से क्वेश्चन आता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द 45 क्वेश्चंस ऑफ नीट 2019 already asked, and you should be get a guideline from these all problems. Okay, with all the best wishes, and we get ready for the forthcoming examination to be held by from the 13th of this month or 13th of this coming September. Okay, thank you very much.